percentage, then what? Fraction. Okay. Okay, all right. Sit down. Good, sit down. G section, children settle down. E section also, please sit down. Everybody look straight. You know this percentage name. This percentage name has come from, originally has come from fraction, which you studied in 6th class. And it has come from the word ratio, which you studied in 7th class. This you studied in 6th class. This you studied in 7th class. Do you remember ratio word? Right? Fraction, everybody knows. It is in the form of numerator by denominator. Whatever you write, ऊपर या नीचे कुछ भी लिखो, in this form, numerator by denominator, we call it fraction, right? Then what is ratio? What is ratio? फ्रैक्शन तो बता दिया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है. Why the name is different? रेशियो भी देखने में आपको ऐसे ही लगता है ना, 1:2, 3:4, you call it 1/2, you call it 3/4, right? Then why it is different from that fraction? Why this new name has come? Ratio name कैसे आया है ये? Anybody who knows what is ratio and what is the meaning of that? What is the utility of that? रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो आप बहुत बार यूज करोगे, अभी तक भी यूज किया आपने. 7th में फुल चैप्टर था. 7th में यू हैव डन अ लॉट अबाउट दिस, and 8th also you have used in many chapters, and you will keep using in other classes also. ठीक है बेटा? What is ratio? कोई बताएगा? Raise your hand who know it. What is ratio? Fraction everybody knows. Raise your hand. फ्रैक्शन के बारे में सबको पता है? हाथ खड़े करो. डू यू नो फ्रैक्शन? यू नो इट. फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में किसी भी चीज को लिखोगे, 1/2, 7/8, 9/2, whatever, that is called a fraction. Raise your hand. Do you know what are fractions? Simple, सबको पता है? Then listen to me carefully. Everybody look straight. D section children, look straight. You are doing a very important topic. You have already started this chapter. You should know the basic of this chapter, okay? So that आपका chapter आगे आगे अच्छा चले. Okay बेटा? See, ratio मतलब you have to compare two things. आप percentage शुरू कर चुके हो क्लास में. Percentage is related to ratio. Ratio is related to fraction. Okay? So you should know in detail कि मतलब क्या है इसका. Okay? Ratio means, why we call a ratio? Ratio means we compare two quantities. सबसे पहले तो ये लिखो कि ratio होता क्या है. Please write down, then we will move further. Write down. A ratio compares. Write down. A ratio compares two quantities. ठीक है? इसमें ये कंपेयर वर्ड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है कि रेशियो ने क्या करना है, कंपेयर करना है टू क्वांटिटीज को. Simultaneously two quantities will be compared. Okay, let us take an example. For example, let speed of scooter ले लो आप is equal to 15. Are you writing, all of you? E section से बच्चे please stop moving. Concentrate over here now. 15 kilometer per hour and speed of cycle is equal to, इसको change कर लो, cycle की you can make it 15 kilometer per hour
and scooter you can make it 30 kilometer per hour. Scooter moves faster, you know it, right? Now we are writing the ratio of speed of cycle to speed of scooter. ओके हम रेशियो की बात कर रहे हैं. अब आप 8th क्लास में हो, हम वो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, हम रेशियो नेम, वी आर टेकिंग द नेम ऑफ रेशियो. अब रेशियो ने करना क्या है, वी आर गोइंग टू सी दैट. ठीक है, जो बच्चे नोट कर रहे हैं साथ साथ में इसको समझो भी. ठीक है, हमने रेशियो किसके लिखे, स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर. टू वर्ड मतलब टू के बाद वाला जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा. साइकिल इज व्हाट, इट इज 15 and scooter is what, it is 30. When you calculate you will say it is coming out to be 1/2. अब ये तो आ गया आपके पास, 1/2 आ गया. अब कंपेयर क्या हुआ हमारा, व्हाट आर यू कंपेयरिंग, क्या कंपैरिजन पता चल रहा है आपको जब आपने 1/2 निकाला. आपको ये पता चल रहा है कि जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे लाइक दिस, आप भी अपनी एरो लगा लो नोटबुक में. So what it tells you, it is telling you 2 times speed of cycle, short form में लिख सकते हो, is equal to speed of scooter. तो एक आपके पास जजमेंट आ गई, जो गिवन चीजें थी उससे आपने जज कर लिया कि स्पीड ऑफ स्कूटर जो है इट इज 2 टाइम्स स्पीड ऑफ साइकिल. दिस इज द कंपैरिजन. ये आप कंपैरिजन कर रहे हो, कंपैरिजन बाय रेशियो. कंपैरिजन बाय रेशियो, एक छोटी सी चीज आपको समझ आनी चाहिए कि हमने 2 चीजों को कंपेयर किया बाय टेकिंग देयर रेशियो. ठीक है, हियर यू आर टेलिंग, वी विल कम टू परसेंटेज इसके बाद. ओके, ये परसेंटेज का प्रीवियस स्टेप है विच यू आर डिस्कसिंग. ऑलराइट, here you are saying कि speed of scooter is, अगर मैं पूछूंगी what is the speed of scooter, you will say speed of scooter is 2 times speed of cycle. Yes ma'am, yes. Assignment of this chapter is not available in school. Okay ma'am, okay, doesn't matter, we will do the introduction and small examples today. Is it clear till now कि speed of scooter is equal to 2 times speed of cycle. If I ask you what is the speed of cycle, फिर आप क्या बोलोगे, speed and speed of cycle is equal to what. स्कूटर के बारे में तो मैंने बता दिया कि इट इज 2 टाइम्स स्पीड ऑफ साइकिल. साइकिल के बारे में क्या बोले हम, व्हाट कैन वी डू, व्हाट वी कैन से, रेज योर हैंड जिनको पता चल गया है. यस यस, जी सेक्शन से, वेरी गुड. Who is telling? You will say speed of cycle will be equal to 1/2 of speed of scooter. इज इट फाइन. देखो आपने कैसे कंपेयर किया, जब आपको साइकिल के बारे में पूछा गया आपने बोला स्पीड ऑफ साइकिल इज हाफ ऑफ स्कूटर. जब आपको स्कूटर के बारे में पूछा गया आपने बोला कि स्पीड ऑफ स्कूटर इज 2 टाइम्स स्पीड ऑफ साइकिल. So this is the way you are comparing two quantities. Here the ratio is used जब आप 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हो. ओके, अब कंपैरिजन जो है इट इज नॉट दैट कि सिर्फ हमेशा रेशियो से ही होगा. वी कैन डू कंपैरिजन बाय परसेंटेज ऑल्सो. एक नया मेथड है कि हमने जैसे परसेंटेज को, किसी ने बोला मेरी 28% है, किसी ने बोला मेरी 48% है, किसी ने 78% बोला, किसी ने 76% बोला, 75.7% बोला. तो ये परसेंटेज से भी कंपैरिजन हो जाता है कि किसका हाई है किसका लो है और किसका एक पॉइंट का डिफरेंस. ओके, सो दिस इज अ बेसिक अबाउट रेशियो. जिन जिनको रेशियो के बारे में समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड. हु हैव कम टू नो कि रेशियो टेल्स अस कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स.
ओके, वेरी गुड, हैंड्स डाउन. आई वांट टू ऐड ऑन वन मोर पॉइंट कि जब भी आपने टू चीजों को कंपेयर करना है, आप उनको क्या करोगे? डिवाइड करोगे. यू विल डिवाइड देम. जैसे हमने 15/30 किया यहां पे. ठीक है, वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, वी कैन डू 30/15 ऑल्सो. अगर मैं स्कूटर को ऊपर लिख दो, साइकिल को नीचे लिख दो, ये 30/15 आ जाएगा. 30/15 से भी सेम रिलेशन आएगा जो जो अभी आपने बताया. ये और ये रिलेशन सेम ही रहेगा. Okay, so this ratio thing is used when you compare two things by division. Next comparison is, other way of comparison is second part. You can say comparison of two things by percentage. परसेंटेज वर्ड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा, सारी लाइफ आप उसको यूज करते रहोगे. परसेंटेज वर्ड इज यूज्ड अ लॉट. So what is percentage? परसेंटेज के बारे में हम क्या बोलें? क्या होती है परसेंटेज? इन जनरल कोई डेफिनेशन नहीं बतानी, कुछ नहीं. इन जनरल किसको पता है कि परसेंटेज हम ये बोलते हैं? बी सेक्शन बेटा, जिनके पास माइक पड़ रहा है, कैन यू टेल मी मतलब क्या होता है परसेंटेज का? अपनी नॉलेज से बताओ, कुछ भी बताओ जो आज तक कभी आपको समझ आया है. 100. 100. ओके, या यू टेल मी दिस इज 100. वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने. और हंड्रेड्स क्या चीज है? इन दोनों में से क्या चीज अप्लाई करें? 100 या फिर हंड्रेड्स? कौन सा नेम अप्लाई होता है परसेंटेज में? वेरी गुड, जल्दी से बता दो. 100. This one? You're talking about this one? No. Okay, other one. ठीक है. Okay, mic off करो. From hundreds. Hundreds. Yes, we talk about 1/100. You know, this is 100 and this is 1/100. Okay? तो आपको जो परसेंटेज का साइन आया है, जो नेम आया है, दैट हैज कम फ्रॉम हियर. इसका मतलब क्या है? दिस साइन. सिंबल, मैथमेटिक्स में कितने सिंबल्स यूज होते हैं? तो दिस सिंबल हैज कम फ्रॉम 1/100. दिस सिंबल नेम इज परसेंटेज और वो नंबर क्या है उसका? 1/100. So 1/100 is a prominent name. If we talk about 5/100, you will say it as 5%. If we call it 9/2 into 1/100, फ्रैक्शन में भी आपका बहुत बार यूज होता है. 9/2 into 1/100. 9/2 एक नंबर है, इंडिपेंडेंट नंबर है. 1/100 इज इंडिपेंडेंट नंबर, जिसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे एंड दैट विल बी 9/2%. तो परसेंटेज का साइन पहले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ इट हैज कम. wherever you see 1/100, there you change it into percentage sign. You know it. ये छोटी क्लासेस में आपने बेटा वो किया था, प्लेस वैल्यू चार्ट किया था. यू रिमेम्बर? प्लेस वैल्यू चार्ट में आपके पास यहाँ पे होते हैं वंस होता है, देन टेंस होता है, हंड्रेड्स होता है, राइट? एंड यहाँ पे फिर से आपके और भी नंबर्स होते हैं. इट इज टेंस, इट इज THS, टेंस ऑन द राइट साइड. प्लेस वैल्यू चार्ट याद है आपको, छोटी क्लासेस में किया होगा. दिस इज हंड्रेड्स. इट इज टेलिंग अस 1/10. इट इज टेलिंग अस 1/100. तो इसकी प्लेस वैल्यू देखो जरा कि 100 की जो है वो इट इज गोइंग टूवर्ड्स राइट साइड, इस डायरेक्शन में जा रही है. हियर यू आर टॉकिंग अबाउट 1, 10, 100.
डू यू रिमेम्बर आपने प्लेस वैल्यू चार्ट किया था ये? ठीक है, तो हंड्रेड्स की जो पोजीशन है वो यहाँ पे आ रही है, आपकी डेसिमल के यहाँ पे आ रही है. व्हाट डू यू कॉल इट? सपोज मैंने लिख दिया 4 5 6 1 2 लिख दिया यहाँ पे नंबर. हाउ विल यू रिप्रेजेंट? क्या बोलोगे इस नंबर को, क्या बोलोगे? व्हाट डू यू कॉल इट? इज इट 45,612? अगर मैं इसको प्लेस वैल्यू में लिख रही हूँ 4 5 6 1 एंड 2, व्हाट इज दिस नंबर कॉल्ड? नंबर क्या होगा ये? इट विल बी 456.12. इसको डेसिमल आ चुका है यहाँ पे उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से. इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप बोर्ड इज क्लियर टू एवरीवन. आर यू एबल टू सी बेटा? बोर्ड इज क्लियर? राइटिंग समझ आ रही है सबको? हाथ खड़ी करो. इज इट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड. हैंड्स डाउन बेटा. सी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, इट इज नॉट 45,612, इट इज 456.12. पहले तो उसकी पोजीशन देखो कि 1/100 की हमारी प्लेस वैल्यू में पोजीशन कहां पे होती है, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1/100, क्या रिप्रेजेंट करता है? यू कैन नोट डाउन. काफी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं. इट इज फॉर योर ओन जनरल नॉलेज. ठीक है बेटा, ये चीजें आप आगे भी यूज करोगे. कंपटीशन में हमेशा रेशियो, परसेंटेज, ये चीजें यूज होती हैं, तो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आपको इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो 1/100 है वो क्या डिपिक्ट करेगा? 1.01. इसको 0.01. ठीक है बेटा. अब सपोज हमने लिया यहाँ पे 9/2 इंटू 1/100 जैसे हमने पहले लिया था. सो इसका मतलब क्या हुआ? 9/2%. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं लेती हूं कि 5.01 एक नंबर है मेरे पास, कैन यू चेंज इट इनटू परसेंटेज? परसेंटेज में चेंज कर सकते हो. 5.01. कैसे करोगे चेंज 5.01 को परसेंटेज में? आई मीन टू से, परसेंटेज का मतलब क्या है कि मुझे कुछ नंबर यहाँ पे लिखना है जिसके साथ ये साइन आ रहा हो. ये साइन कहां से आएगा? जब मेरे पास कुछ यहाँ पे 1/100 है, कोई नंबर चाहिए उसके साथ 1/100 लिखा होगा तो मैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगी. व्हाट इट नंबर विल बी? यहाँ पे नंबर क्या आएगा? कैन यू टेल मी? 5.01. जी सेक्शन, जी सेक्शन जिनके पास माइक है आगे, कैन यू टेल मी बेटा? 5.0. डरना नहीं है, जो आपके माइंड में आ रहा है बताओ. 5.01 एक नंबर है, उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. ये कोई क्वेश्चन नहीं है. 100 1/100. कैसे क्वेश्चन किए थे, बुक से नहीं किए थे? हाँ जी बताओ. वेरी गुड. 500 1/100. यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू 501/100. आपने किया. हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 501. जैसे मैंने परसेंटेज का साइन लगाया मैं 100 को काट दूंगी. 100 हमारा कहाँ चला गया? दिस 100 हैज कन्वर्टेड इनटू डिनोमिनेटर वाला जो 100 था, इट हैज कन्वर्टेड इनटू साइन. सो इट हैज कम आउट टू बी 501%. आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ही डिनोमिनेटर में 100 आया हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया. ओके. अभी जैसे मोर एग्जांपल्स आई एम टेकिंग. परसेंटेज ऑफ, राइट डाउन एग्जांपल. यू कैन राइट डाउन एग्जांपल्स. परसेंटेज आपने साइंस में पढ़ा हुआ है. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन
in atmosphere? Have you read it in science? Percentage of oxygen in atmosphere. What is the percentage of oxygen in atmosphere? आपने पढ़ा हुआ है? कोई बताएगा? पढ़ा हुआ है आपने साइंस में बेटा? वेरी गुड, जल्दी से बता दो। 21%. Is equal to 21% of what? किसके 21%? पूरे प्रेशर का, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका 21%। ठीक है, वो कितना है आपके पास? 760 mmHg, ये उसके यूनिट है, राइट? 21% of 760 mmHg. This is unit of atmospheric pressure, right? तो कैन यू फाइंड कि ऑक्सीजन है कितनी? 21% तो बता दिया कि 21% ऑफ दिस, बट है कितनी ऑक्सीजन? So write down quantity of oxygen. Quantity of oxygen कितनी है? Can you find it? ऊपर हमारे पास था परसेंटेज, यहाँ पे we are writing about quantity of oxygen कितनी है? Please find it. क्वेश्चन तो आपने किए हुए हैं क्लास में, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वांटिटी कुछ और है, परसेंटेज कुछ और है। क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन प्लीज निकालो। इसको ए और बी पार्ट में चेंज करो, ताकि आपका ए पार्ट कुछ और बता रहा है, बी पार्ट में कुछ और बता रहे हैं हम। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। Who have found? हाथ खड़े कर दो। अप्रोक्सीमेट, ठीक है, जब भी आप डेसिमल में निकालते हो, मुझे पता है ये डेसिमल में आएगा आपका, जब भी आप डेसिमल में चीज निकालते हो 1 प्लेस तक निकालना। 159.6। आर यू गेटिंग इट? हाथ खड़े करो, किस किस का निकल रहा है? यस, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ एयर इन द एटमोस्फेयर। ठीक है बेटा, सो दिस इज द वे यू फाइंड। आई मीन टू से व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, कि आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज कुछ और वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू कुछ और थी। सपोज आपको 40 मार्क्स का टेस्ट हुआ क्लास में, ठीक है, किसी के 35 मार्क्स आए, किसी के 32, मे बी 40 को टच कर रहे हैं, फुल 40 मार्क्स भी होंगे। अगर किसी के फुल 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? हाउ मेनी परसेंटेज? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दैट? 100. 100%। वो तो श्योर है। किसी के आए हैं 100%? प्लीज हाथ खड़े करो। आने चाहिए, आपने इतनी मेहनत की है, 100% आने चाहिए। आपके अगर कटे हैं मार्क्स, तो थोड़ी बहुत आपकी सिली मिस्टेक्स होंगी, कहीं पे क्वेश्चन गलत नोट कर लिया होगा, कहीं कैलकुलेशन की गलती होगी, कहीं यूनिट नहीं लिखा होगा। इट इज लाइक दैट, छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी ना। ओके, किन की 39 आए हैं? हाथ खड़ा करो, किसी की 39 आए हो आउट ऑफ 40। देन ऑल्सो आई विल से सिली मिस्टेक्स होंगी। 38, ओके 32, 32 तो काफी होंगे, बहुत मेहनत की आपने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हैंड्स डाउन। ठीक है, 32 मार्क्स आउट ऑफ 40। ठीक है, एग्जाम्पल एक और लिखो, 32 मार्क आउट ऑफ 40। ठीक है, when you went home, your parents asked how many marks you get, you will say 32 out of 40. If they will ask you percentage, what is a percentage? कितने परसेंट मार्क्स हैं? उसके लिए आपको एक और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। You cannot say 32%. Marks are 32, you know it, this is the quantity.
80%. That is 80%. 32 out of 40 into 100%. अब इसका मैं previous step, I want to write the previous step of this. It should be 32 by 40 into 100 by 100. ये इसका previous step है. Previous step है, तभी तो वो percentage का साइन बना है ना. 100 को आपने यहीं छोड़ दिया और जो 1 by 100 था उसका साइन में कन्वर्ट हो गया. Why I'm telling this? Why? Because काफी बच्चे 32 by 40 into 1 by 100 लिख देते हैं और इसको कैंसिल कर देते हैं and they don't know कि 100 हमारा न्यूमरेटर में आना चाहिए. That is most important. यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है. Please be careful. Don't do this. जब आपने परसेंटेज का साइन लगाया उसका पिछला स्टेप आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास वो परसेंटेज का साइन कहां से आया. It came from 100 by 100. ऊपर वाला 100 still with you, that is 3200. जो नीचे वाला 100 था, it is converted into sign, that is percentage sign. ठीक है बेटा, please don't do this mistake. So when you calculated it, 32 by 40 into 100%, you found it to be 80%. 80%. सुनने में कितना अच्छा लगता है कि I got 80% marks. अच्छा लगता है कि नहीं? Is it fine? Okay. And for 32 out of 40. 32 out of 40 थोड़े से कम लगते हैं. लगता है कि इतने मार्क्स कट गए हमारे. जब आप परसेंटेज की बात करते हो तब लगता है कि नहीं, इट इज फाइन, 80% अच्छे मार्क्स हैं. ठीक है, इन जनरल टॉक होता है ना ऐसा जब किसी से बात करते हो. 80% अच्छे मार्क्स में काउंट होते हैं. ठीक है बेटा, बट 8 मार्क्स कटने इज अ मेजर थिंग. 8 नंबर आपके अगर एग्जाम में कट रहे हैं, इट मीन्स कि आपने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स की हैं, तब जाके 8 कटे हैं आपके. बी केयरफुल. You know many chapters you have done in detail. ठीक है, try to avoid mistakes. अभी आपके फाइनल एग्जाम भी आने हैं. Try to practice more. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके मार्क्स जो है वो you will go closer to 100%. Who want to go to closer to 100%? Raise your hand. You want to go now? Yes, raise your hand. Make it an aim. Aim बनाओ. Yes, everybody wants to do. ठीक है, make an aim कि yes, I want to score 100%. Very good. You will do it. Who are raising their hands, they will really score it. I'm telling you. Very good. Very good. I want to see more hands. B section, A section. You want to get 100%, you will get it. ठीक है, अपना aim बनाओ. Whatever you believe, whatever you think कि I will do it, you are able to do. I'm telling you. जो बच्चे मुंह से बोलते हैं ना कि I will do it, they really gain it. Start believing in this. Okay, beta? Today we will do small questions of percentage. परसेंटेज का बेसिक आपको पता चल गया है. ठीक है, आपको ये पता चल गया कि रेशियो का मतलब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं. कंपेयर परसेंटेज का मतलब अगेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स. ठीक है, परसेंट कंपेयरिंग टू थिंग्स इन द परसेंटेज फॉर्म, कंपेयरिंग टू थिंग्स इन द रेशियो फॉर्म. ओके, दिस इज द वे वी गो. अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे. यू कैन कीप राइटिंग क्वेश्चंस विद मी. ठीक है, you have done आपने डेटा हैंडलिंग किया हुआ है चैप्टर. डेटा हैंडलिंग किया था आपने. Yes. पाई चार्ट किया हुआ है ना. Yes. ठीक है, चलो एक पाई चार्ट बनाओ. मेक अ सर्कल. ठीक है, उसमें पार्ट्स बनाओ. दिस इज 50% एंड दिस इज 20% एंड दिस इज 30%. किस किस का 50% है, किसका 30% है, किसका 20 है. वी आर गोइंग टू राइट दैट. Two friends help each other in a
प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर टू फ्रेंड्स आर वर्किंग टुगेदर एंड दे आर हेल्पिंग ईच अदर। जनरल एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। Find the ratio of 50% help. रेशियो ऑफ 15% हेल्प। 50% हेल्प अगर किसी ने एक दूसरे की है उन्होंने, तो 50% हेल्प में क्या किया, व्हाट इज द रेशियो का, फाइंड द रेशियो। फिफ्टी परसेंट में क्या आएगा, क्या लिखोगे यहाँ पे, आपने क्या पढ़ा हुआ है कि 50%? 1:2. 1:2. 50% ऑफ व्हाट, 50/100. 50/100 इज इक्वल टू 50/100, 50/100 is equal to 1 and 2 you found, it is 1:2. Similarly, find the ratio of 20%. Ratio of 20%. Everybody, 1:5. 1:5. 20/100 is equal to 1:5. जब भी आपको रेशियो में आंसर क्वेश्चन पूछा हो, यू आर राइटिंग आंसर इन रेशियो फॉर्म, ठीक है। यू डोंट हैव टू राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म, ऑलवेज रिप्रेजेंट 1:5, 1:2, क्योंकि आपको रेशियो पूछा गया था, रेशियो में ही आपने आंसर देना, ओके। Okay, one thing more. Ratio of 5 meter to 10 kilometer. Ratio of, this is the basic, you know, ratio is the basic of percentage. अभी इसके बाद percentage के questions करेंगे. What is the ratio of 5 meter to 10 kilometer? I am writing it over here, 5/10. Is it fine? No. Who say no? आप खड़े करो। पहले हम किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड, दिस इज रॉन्ग। तो रेशियो में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक द यूनिट्स सेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिट्स सेम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब नहीं करोगे क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। सेकेंड थिंग इज, रेशियो की और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, रेशियो हैज नो यूनिट। उसकी कोई ये खासियत है कि उनकी यूनिट ही नहीं होती है कोई। वाई? बिकॉज यूनिट तो आपने सेम कर दी, 5 मीटर बाय 10 into 1000 मीटर। आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। बोल कि हम रेशियो का क्वेश्चन ऐसे नहीं कर सकते, तो हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। व्हेन यू हैव डन द सेम यूनिट, यूनिट हैज गॉन। 1:2000. 1:2000. तो ये आपके पास जो आ रहा है, इट हैज नो यूनिट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो। प्लीज रिमेंबर एवरी टाइम, एक तो आपको यूनिट सेम बनानी है, और सेकेंडली उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। राइट, वन मोर क्वेश्चन। Change 3:4 into percent. 3:4 into percent.
आंसर नहीं बताना, हाथ खड़े करो किस किस को पता है कैसे करना है। क्वेश्चन कॉपी डाउन कर लो। स्टार्ट डूइंग, वेरी गुड, स्टार्ट डूइंग। आई विल कॉल यू। वेरी गुड, कंप्लीट करो, पूरा कर लो क्वेश्चन। I'm 75%. 5%। यू डिड इट इन रेशियो को पहले अपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। Yes. इसका 75% आ रहा है, हाथ खड़े करो। बहुत जल्दी कर लिया आपने। इट मीन्स यू नो टिल हियर इट इज योर थिंग्स आर वेरी क्लियर। 3/4 into 100%। जब आप लिखते हो ना, प्लीज स्पीक आउट, लिप सिंक भी करो। काफी बच्चे इसमें ठीक कर रहे हैं, मेनी चिल्ड्रन आर डूइंग राइट, बट जो बच्चे गलती कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि जब तक आप बोल के नहीं लिखोगे आपकी गलती होती रहेगी। लिप सिंक करो, मुंह से बोलो और लिखो, ठीक है। 3/4 into 100%। You are cutting it and you are finding it 75%। ठीक है। परसेंटेज साइन इज वेरी ब्यूटीफुल साइन, और राइट इट ब्यूटीफुली, ठीक है। काफी बच्चे सिर्फ लाइन बना देते हैं, ये जीरो साइड पे जो हम मार्किंग है वो लगाना भूल जाते हैं या फिर डॉट्स लगा देते हैं। कई बच्चे इतना सा साइन बनाते हैं कि चलो मेरा तो काम हो गया। प्लीज डोंट डू दिस। राइट ब्यूटीफुली, यू हैव टू स्कोर मार्क्स। उसके लिए आपको अपनी राइटिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। ओके, इट मीन यू नो दीज। वन मोर क्वेश्चन लिखो। चेंज 12.35 in percent। 12.35। मेरे को प्लीज आंसर मत बोलना, आई विल कॉल द चिल्ड्रन। आई वांट टू नो सबको आ रहा है या नहीं। Many are doing, but still I want to ask. D section से last boy, middle row. Please come forward. ये oral question है, nothing much to do. कोई ज्यादा calculation नहीं है, कुछ नहीं है। Please tell me. Change 12.35 in percent. What it should be? बोलो। माइक ऑन करो बेटा। हाँ जी, किसी को सुनना नहीं है, अपना माइंड यूज करो। आप मेरे को सुन रहे हो ना? 1235%। 35%। Okay, 1235%। You are saying this? Yes. बिल्कुल ठीक है, very nice। 1235 by 100 because we have removed the decimal. Very good. Please sit down. Or it is equal to 1235%। बिल्कुल ठीक है। कई बच्चों को डाउट होता है कि अरे इतना ज्यादा परसेंटेज कहाँ से आ गई। अब वो नंबर ही ऐसा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। जैसा नंबर है वैसे ही हमें आंसर लिखना पड़ेगा ना। वी आर लुकिंग फॉर 100 इन द डिनोमिनेटर। जैसे ही 100 डिनोमिनेटर में आया हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा, थिंग इज दैट। लेट्स डू मोर। ये क्वेश्चन जो मैं अभी लिख रही हूँ, प्लीज यू ऑल्सो नोट इट डाउन सीरियसली, ठीक है, क्योंकि वो मॉड्यूल में आगे आएंगे आपके पास। तो प्लीज डू इट नाइसली। द रेशियो ऑफ, this is actually ऊपर हेडिंग लिख लो ट्रू फॉल्स। यू आर डूइंग ट्रू फॉल्स, ओके। ऊपर हेडिंग लिख लो ट्रू फॉल्स का। द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ ratio 1 ratio 4 converted to percentage is 50%। ये statement है, you have to tell this is true or false। False. Please solve it and tell me। False. Okay,
False. I'm G false. section. G section. Last corner boy. Please आओ आगे. Very good. आ जाओ. Very good. आप ही आ जाओ. कोई बात नहीं. Thing is कि we have to understand the topic, बेटा. Okay, बेटा. Ma'am, good morning. Morning. बच्चे, please tell me if this is false or true. False. False. Why? Because ma'am, 25% is the right answer. Very good. Very good. Please sit down. Please sit down. Very good. हाथ खड़े करो. किस किस का false आया है. बैठ जाओ बेटा. Please sit down. Very good. Sit down. Very good. आपको बिल्कुल देखने से ही पता चल रहा है कि it cannot be 50%. Second statement is to convert ratio to percentage. Please write down to convert ratio to percentage. Time is over. Last sentence, please complete it. We multiply it by 100. Multiply it by 100. मेरे को true की आवाज आई है. Is it fine? Ma'am, yes, true है. True. हाथ खड़ी कर दो फटाफट से. For saying true. Very good. आपको ये पता होना चाहिए कि multiply 100 and मेरा sentence अभी complete नहीं हुआ है. Please complete it and put sign of percentage. Now my sentence is complete and your answer is correct. This is true. कोई भी नंबर है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ के साथ उसका साइन भी लगा देंगे. ठीक है. इट्स नॉट दैट वी कैन नॉट डू वन थिंग कि अकेला साइन लगा दिया मल्टीप्लाई करना भूल गए या मल्टीप्लाई कर दिया साइन लगाना भूल गए. नो, नेवर लाइक दिस. ओके. चलो सी यू टुमारो बेटा. बाय. Bye, ma'am.